सबसे बड़ा ऐलान गरीबों, महिलाओं, युवाओं और खिलाड़ियों के लिए किया गया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि बजट में गरीबों को मुफ्त बिजली और राशन का ऐलान किया गया है। सीएम ने बजट में गरीबों के लिए प्रति व्यक्ति 10 किलो मुफ्त राशन और हर परिवार के लिए गरीबों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की है, जिसका लाभ लोगों को 1 अप्रैल से मिलने लगेगा। सबसे पहले सुनिए कि मुफ्त राशन और बिजली को लेकर सीएम ने क्या घोषणा की। तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज बजट पेश करते हुए कई ऐलानात किए हैं, जिनमें प्रति व्यक्ति 10 लोगों को मुफ्त राशन मिलने की घोषणाएं शामिल हैं, जो कि 1 अप्रैल से लोगों को मिलने लगेगा और हर गरीब को 200 रुपये यूनिट फ्री बिजली मिलेगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये बड़ी घोषणाएं की है और साथ ही साथ आपको बताएं कि 7 साल बाद पेश हुए बजट पर अब प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो चुकी हैं। सबसे बड़ा ऐलान गरीबों, महिलाओं और युवाओं और साथ ही साथ खिलाड़ियों के लिए किया गया। सबसे बड़ी खबर यह है कि बजट में गरीबों को मुफ्त बिजली देने की बात कही गई है और राशन का ऐलान सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया है। 10 किलो राशन गरीबों को दिया जाएगा। इंतहाई जो गरीब है उन्हें 10 किलो राशन प्रति माह दिया जाएगा और ये फैसला 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। गरीबों को प्रति व्यक्ति 10 किलो मुफ्त राशन, जैसे कि हमने आपको कहा, हर परिवार के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की गई है, जिसका लाभ लोगों को 1 अप्रैल से मिलने लगेगा। सबसे पहले सुनिए कि मुफ्त राशन और बिजली को लेकर सीएम ने क्या कुछ घोषणा की थी। आइए सुनाते हैं। As an additional measure of social security, I propose free ration of 10 kgs per person to all AAY beneficiaries starting April 1st, 2025 to enhance nutritional support for the most vulnerable. To further improve accessibility and streamline distribution, the government will assess and upgrade fair price shops, reinforcing our commitment to an efficient and inclusive food security system. To provide financial relief and energy security to the most vulnerable, I propose to provide 200 units of free electricity to all AAY families in Jammu and Kashmir. Integrated with the PM Surya Ghar Bijli Yojana, this initiative will enable the installation of grid-connected solar systems, generating the required power and eliminating electricity bills. With an investment of 750 crore spread over 5 years, this step will also reduce AT&C losses and promote sustainable energy. I urge this august House to support this transformative move towards a greener, more inclusive financial assistance. तो आप सुन रहे थे कि क्या ऐलान किया गया है, खासकर फ्री राशन को लेकर और 200 यूनिट बिजली को लेकर। वो आपको सुना रहे थे कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट में क्या कुछ कहा। और उसके अलावा सीएम उमर अब्दुल्ला ने बजट में महिलाओं के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। महिलाओं को सरकारी परिवहन सेवाओं की सुविधा फ्री में मिलेगी, यानी मुफ्त सफर कर सकेंगी महिलाएं। 1 अप्रैल से सरकारी बसों में ये फ्री सुविधा उन्हें मिलने लगेगी। सीएम ने साथ ही विवाह मदद योजना की राशि को अब बढ़ा दिया है। पहले ये राशि 50,000 थी, जिसे अब 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करने का ऐलान किया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि सरकार लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाने को लेकर काम करेगी। सुनिए। Starting from 1st April 2025, all women in Jammu and Kashmir will be granted free ridership on government-owned transport. All women in Jammu and Kashmir will be granted free ridership on government-owned public transport, including e-buses. This initiative will ease financial burdens, enhance access to education and employment, and ensure safer, more affordable travel. By removing transport costs, we aim to increase women's mobility, boost workforce participation, and foster greater independence. I urge this august House to support this progressive step towards a safer, more inclusive. The mission aims to transform 2.33 lakh potential Lakhpati Didi households into the Lakhpati fold within 2 years, with 29,000 already achieving this milestone.
To boost women's participation in the rural economy, 1.5 lakh women farmers will receive training under NRLM. The Umeed program will establish 14,763 self-help groups, linking 12,000 self-help groups to banks and benefiting 1.32 lakh households. तो महिलाओं के लिए क्या कुछ ऐलानात किए गए हैं आप सुन रहे थे। महिलाओं को फ्री बस सुविधा दी जाएगी, खवातीन के लिए बड़ा ऐलान है। तो वहीं कई और मुफ्त स्कीमात को लेकर ऐलानात किए गए हैं, जिसमें 200 यूनिट फ्री बिजली और 10 किलो राशन शामिल है। बसों में मुफ्त सफ़र के ऐलान के फैसले से महिलाएं काफ़ी खुश हैं। जम्मू में सरकारी बस में सफ़र करने वाली महिलाएं सीएम के फैसले की तारीफ कर रही हैं। सुनाते हैं। आज विधानसभा में जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया गया है और सबसे अहम खुशखबरी जो है वो महिलाओं के लिए है। 1 अप्रैल से उनका जितनी भी सरकारी बसें हैं उन निःशुल्क वो जो है वो सेवाएं ले पाएंगी, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो है बिना किराया दिए भी वो जा पाएंगी। कितना खुशामदीन, कितना खुशी का पल उनके लिए जानेंगे। मैम, जो ये बजट में कहा गया है कि 1 अप्रैल से महिलाओं को है निःशुल्क सेवा दी जाएगी बसेस में, क्या कैसे देखती हैं आप? ठीक है, अच्छी बात है। महिलाओं को कितना फायदा होगा इससे? कई महिलाएं जो हैं वो जो है गरीब तबके से लोग हैं या आम कॉमन महिलाएं भी हैं जो सरकार ने उनके बारे में सोचा है, आप कैसे देखते हैं? ठीक ही है। कितना फायदा होगा महिलाओं को? क्या क्या फायदा होगा महिलाओं को? आना जाना फ्री हो जाएगा। सहूलत होगी। हाँ, बैठ अच्छी बसेज हैं जी। तो देख सकते हैं कि महिलाओं का कहना है कि ये खुशी का पल है। महिलाओं के लिए फ्री जो है वो बस सेवा की गई है, कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा स्टेप है। जैसे कुछ तो फाइनेंशियली साउंड होती हैं, कुछ फाइनेंशियली साउंड नहीं होती है, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। इसमें सरकार ऐसे बहुत सारे काम करी जिससे वुमेन अपलिफ्टमेंट हो रही है, इससे और ज्यादा होगी। सरकारी बसों में जो है अब जैसे ये स्मार्ट बसेस भी हैं, ई बसेस हैं, उसमें आप निःशुल्क जाएंगी, ये कितना आपको सहूलियत कितनी हो जाएगी इससे? इसमें सहूलियत बहुत है। सबसे पहले हम ये देखते हैं जितनी भी ई बसेज है इनमें कभी भी रैश ड्राइविंग नहीं होती है। सारी इनकी खिड़कियां बंद है, कोई डस्ट का कोई कुछ नहीं है, आप आराम से ट्रेवल कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। दूसरी बसेज में आप जाते हो, आपको सीट नहीं मिलती, इतनी धक्का मुक्की होती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब निःशुल्क हो रहा है तो ये तो एक बहुत अच्छा स्टेप है जिसको सबको वेलकम करना चाहिए। जो रोज ट्रेवल करती हैं उनका कितना पैसा और ये बचेगा? बचेगा सर। जैसे आप कहीं पास में भी ट्रेवल करते हो, 50-20 रुपीज एक साइड का होता है, 40 आप लगा लो। तो अगर वो कुछ होते हैं जो सोन नहीं होते हैं, उनके लिए घर से निकलना 40 रुपए निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है, उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप है ये। तो देख सकते हैं कि निःशुल्क जो सेवा दी जाएगी महिलाओं को, ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी कई महिलाएं हैं जो कि रोज ट्रैवल करती हैं, कामकाजी महिलाएं होती हैं, और उनके लिए जब उनके लिए निःशुल्क ट्रैवल होगा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, अब 1 अप्रैल से सभी महिलाओं के लिए फ्री है ट्रैवल करना सरकारी बसों में, कैसे देखते हैं? अच्छी बात है ये जी। कितना फायदा एक स्टूडेंट्स के लिए? कितना पैसा आपका बचेगा, कितना आप, क्योंकि हर कोई रोज ट्रैवल करता है और काफी पैसे भी खर्च होते हैं। अब जब निःशुल्क आप जाएंगे कैसा लगेगा? ठीक ही है, मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेटर है। जब बसेस नहीं होती, मतलब कि गाड़ियों की, मतलब कॉलेज आ रहे हैं स्टूडेंट, उनको गाड़ियों की दिक्कत होती है, तो ये तो मतलब सही है। हाँ, पैसा भी बचेगा। तो देख सकते हैं कि चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो कामकाजी महिलाएं हों, सबके लिए जो है ये अच्छी बात है और काफ़ी खुश भी हैं इस फैसले से। अब 1 अप्रैल से जब वो निःशुल्क यहाँ ट्रेवल करेंगी सरकारी बसों में, तो उनका कहना है उससे पैसा भी बचेगा उनका, उसके साथ साथ महिलाओं को जो है काफ़ी सहूलत हो जाएगी, क्योंकि रोज़ ट्रेवल करना होता है, रोज़ कामकाज पे जाना होता है। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट ने उनके बारे में सोचा है तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो आप देख रहे हैं कि ये खवातीन हैं, महिलाएं हैं जो आज लिए गए बजट में फैसले से काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब सरकारी बसों में इन्हें मुफ्त सफ़र करने को लेकर जो ऐलान किया गया है उस पर उनकी तरफ से इजहार ख्याल किया जा रहा था, और इस कदम को वो सराहनीय कदम बता रही हैं। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। बजट से अब क्या महंगा हुआ है ये भी हम आपको बता देते हैं। बजट से महंगा हुआ है पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल। पेट्रोल पर HSD पर छूट घटा दी गई है। फैसले से प्रति लीटर पेट्रोल अब 1 रुपये महंगा होगा, हाई स्पीड डीजल जबकि 2 रुपये महंगा होगा। तो ये बजट के एक दूसरे रुख को हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ मुफ्त योजनाओं और मुफ्त फैसले, योजनाओं को लेकर फैसले लिए गए हैं, तो दूसरी तरफ बजट से क्या महंगी होगी चीज़, ये भी हम आपको बता रहे हैं। बजट से
पेट्रोल और डीजल, हाई स्पीड डीजल महंगा होगा क्योंकि पेट्रोल पर HSD पर जो छूट थी उसे घटा दी गई है। फैसले से प्रति लीटर पेट्रोल 1 रुपए महंगा होगा और हाई स्पीड डीजल 2 रुपए महंगा हो जाएगा। To encourage a shift towards cleaner technologies, the prices of these fossil fuels are lower in Jammu and Kashmir than neighboring states like Punjab, Haryana, Himachal and Delhi. Hence, it is proposed to reduce the rebate on petrol by 1 rupee per litre and on HSD by 2 rupees per litre and increase tax rate on aviation turbine fuel to 5%. जम्मू कश्मीर में आज बजट पेश किया गया है और आज इस बजट से बहुत सी उम्मीदें लोगों को थी, लेकिन बजट में झटका भी दिया गया है लोगों को। 1 रुपया पेट्रोल तो 2 रुपए डीजल को महंगा किया गया है, रिबेट लगाया गया है। आम आदमी जो है उसकी जेब पे कितना इम्पैक्ट इसका आएगा वो हम जानेंगे। जो पेट्रोल डलवाने यहाँ पे आए हैं, 1 रुपया पेट्रोल और 2 रुपए डीजल महंगा किया गया है। आम जनमानस कैसे इसको देखता है? आगे बहुत महंगाई है, इसलिए और बोझ पड़ेगा गरीब आदमी और कम होगा। महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। सरकार को ये लगता है कि पेट्रोल और डीजल का जो इम्पैक्ट है वो बाकी चीजों पे आता है? हर चीज पे आता है, सब कुछ इसी पे चलता है। डीजल से गाड़ी का सब्जी जो भी सामान करना है सब कुछ इसी से आएगा ना, तो महंगा तो होगा। महंगाई हो गई इससे ये हम जानेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं, 1 रुपया पेट्रोल और डीजल महंगा किया गया है, रिबेट लगाया गया है। स्टूडेंट्स जो रोज जाते हैं पेट्रोल डलवाते हैं, कितने उनके लिए क्या? स्टूडेंट्स को तो कुछ होना चाहिए, डिस्काउंट वगैरह कुछ मिलना चाहिए। वैसे अब जो नौकरी वाले हैं वो तो कर सकते हैं, बट इनके लिए डिस्काउंट होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स वगैरह, जो महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल, इससे आपकी बोझ पे कितना अतिरिक्त बोझ आएगा? सर देखो, जिसके पास जॉब्स वगैरह नहीं है उसको तो दिक्कत होगी। तो जिसके पास जॉब है उसको तो चलो वो तो चला लेगा, टाइम निकाल लेगा, बट दिक्कत तो उसके लिए है जिसके पास जॉब्स नहीं है। अब आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर में जॉब्स वगैरह कितनी कम है, तो लोगों के पास काम नहीं है, वेले बैठे हुए हैं, दिमाग उल्टा ही चल रहा है उनका गलत जगहों पे, तो उनके लिए थोड़ा कुछ हो सकता है। तो बाकी चीजों पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा जब ट्रांसपोर्ट भी, जब पेट्रोल ज्यादा महंगा होगा। वो तो है ही है, वो तो किराए वगैरह तो वो तो बढ़ ही रहे हैं, वो तो कम हो नहीं ना रहे हैं। तो ये आप लोगों का रिएक्शन सुन रहे थे जो फैसला लिया गया, और इससे के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वक्त आपको बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कुछ देर पहले बजट की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, ख्याल रखा गया है। सुनिए जरा। बजट बहुत ही अच्छा था, इसने हर चीज को कवर किया है। दोनों जम्मू और कश्मीर को कवर किया है, यहाँ के एजुकेशन सेक्टर को कवर किया है, हेल्थ सेक्टर को कवर किया है, टूरिज्म सेक्टर को कवर किया है। कोई भी सेक्टर छोड़ा नहीं गया। जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनके बारे में भी सोचा गया है, उनके लिए भी किया गया है, और पावर सेक्टर के लिए किया गया है। बहुत अच्छी बात है। और राशन वगैरह सबके लिए मैं समझता हूँ कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा गया, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट से लोगों को राहत मिलेगी और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा।